Hello friends, welcome back to my channel Speak Something. In this video we will talk about the topic punctuation. Now, what is punctuation? Punctuation को हम हिंदी में विराम चिन्ह भी कहते हैं. Punctuation is the use of spacing, convention signs and certain typographical devices as to the understanding and correct reading of written text, whether read silently or aloud. The most common punctuation marks in English are capital letters, full stop, question marks, commas, colons, semicolons, exclamation marks, and quotation mark. In speaking, we use pauses and the pitch of the voice to make what we say clear. Punctuation plays a similar role in writing, making it easier to write. Meaning, हमारे most common punctuation marks होते हैं कैपिटल लेटर हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ये सब. हम जिस तरीके से बोलने में थोड़ा सा पॉज और पिच देते हैं अपने वॉइस में, उसी तरीके से पंक्चुएशन हेल्प करता है हमारी राइटिंग में टू ईजियर टू रीड, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो. So first is capital letters and full stop. Where it's used, we use capital letters to mark the beginning of a sentence and we use full stop to mark the end of a sentence. जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बिगिन करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो हमेशा हम उस सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करेंगे और एंड करेंगे उस सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ द मार्क फुल स्टॉप. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू फ्रांस लास्ट समर. आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट पे हमने डब्ल्यू को कैपिटल में रखा है और जब हमारा सेंटेंस का एंड हुआ तो हमने लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाया? फुल स्टॉप. देन वी वर रियली सरप्राइज्ड दैट इट वाज सो इजी टू ट्रैवल ऑन द मोटरवेज. देन स्टार्टिंग इज फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद फुल स्टॉप. The next meeting of the group will take place on Thursday. First is T is capital and the end of Thursday is with full stop. Then what plans do you have for Chinese New Year? Now this is the question. Then but if this question is also starting with capital letter. W is capital letter. Now we use capital letters for the title of books, magazines and newspapers, plays and music. अब हम कैपिटल लेटर को हम किसी बुक की टाइटल में, जैसे बुक का कोई टाइटल है या मैगजीन है या न्यूज़पेपर है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे ऑलिवर इज अ म्यूजिकल बेस्ड ऑन द नोवेल ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस. अब ऑलिवर क्या है? म्यूजिकल बेस्ड है नोवेल ऑलिवर ट्विस्ट, जिसको हमने कैपिटल लेटर में करा है. द स्ट्रेट्स टाइम्स इज अ डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन सिंगापुर. अब स्ट्रेट्स टाइम्स एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है इन सिंगापुर. तो स्ट्रेट्स टाइम्स भी हमारा कैपिटल लेटर में आएगा. द पर्टिकुलर नेम विल बी इन कैपिटल लेटर. दे आर परफॉर्मिंग बीथोवन 6 सिंपैथी. Now, in addition to closing sentence, we also use full stop in initial for personal names. अब जैसे किसी का पर्सनल नेम होते हैं या शॉर्टकट नेम्स होते हैं तो हम उसको ऐसे देते हैं कि G.W.Ir, David A. Johnston, accountant. So this is also we can use it full stop for the personal names. Okay. Now, full stops are used after abbreviations, although the practice is becoming less common. Like abbreviations के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिसके आपको पता है बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म होती हैं जिसके आगे फुल स्टॉप का यूज़ होता है. जब हम फुल फॉर्म हमेशा हम फुल फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं तो हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. जैसे अराइवल का हो जाएगा ARR डॉट, एक्सेट्रा का हो जाएगा ETC डॉट, डॉक्टर का हो जाएगा DR डॉट, प्रोफेसर का हो जाएगा PROF डॉट. The football World Cup take place every 4 years. Okay, this is also capital letter and ending with full stop. Then the next World Cup will be held in South Africa. Okay, this is also our examples of full stop and capital letters. We also use capital letters at the beginning of proper nouns. Proper nouns include personal names, including title before names, nationalities and languages, days of the week and month of the year, public holidays, as well as geographical places. ठीक है. अब हमारा क्या है, मतलब कि हम प्रॉपर नाउन में भी हम बिगिनिंग जब हमारी प्रॉपर नाउन होती है उसमें भी यूज़ करते हैं. जैसे प्रॉपर नाउन में इंक्लूड हो जाता है आपका नाम, नेशनलिटीज, लैंग्वेजेस, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये सब आपका इन सब की स्टार्टिंग होगी विद कैपिटल लेटर. लाइक डॉक्टर डेविड जेम्स इज द कंसल्टेंट ऑफ लीड्स सिटी हॉस्पिटल. ठीक है. तो दिस इज द नेम डेविड जेम्स एंड वी कैन यूज इट एज अ कैपिटल लेटर. डेविड मस्ट बी यूज इज एज कैपिटल लेटर. They are planning a long holiday in New Zealand. Now, New Zealand is the country name. Okay, now this word will begin from capital letter. Okay. Can she speak Japanese? अब Japanese क्या हो जाती है? एक लैंग्वेज हो जाती है. तो Japanese भी हमारा Japanese का J will be in capital letter. Question marks and exclamation marks.
क्वेश्चन मार्क्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम कहते हैं विस्मयवाचक चिन्ह. We use question marks to make clear that what is said is a question, and when we use a question mark, we do not use a full stop. अब आ रही चीज याद रखना, जब भी हम कोई क्वेश्चन यूज करते हैं तो हम लास्ट में उसकी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं. जैसे कि व्हाई डू दे मेक सो मिस्टेक्स, वो इतनी गलतियां क्यों करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द लाइन हमने यूज करा है क्वेश्चन मार्क. सो यू आर हैरिस कजन, क्या आप हैरिस के कजन हो, तो क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन है. यस दैट्स राइट, तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो दिस इज वी कैन यूज एज अ फुल स्टॉप. We use exclamation marks to indicate an exclamative cause or expression in informal writing. When we want to emphasize something in informal writing, we sometimes use more than one exclamation. देखिए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ बताया था. इंटरजेक्शन में हम इस पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं. स्पेशली इंटरजेक्शन में हमारा ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ होता है. जैसे कि सडन फीलिंग, अचानक से कोई चीज़ होना, एकदम से कोई खुशी, जॉय, या एकदम से सैडनेस या ग्रीफ में हम इस मार्क को यूज़ करते हैं. जैसे कि लिसन, एक कमांड में हम यूज़ करते हैं इसे. ओ नो, एक सैड फीलिंग में हम इसे यूज़ करते हैं. अभी आपने मेरे को बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि पहले इंटरजेक्शन, फिर नो स्पेस, देन पंक्चुएशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. ओ नो प्लीज डोंट आस्क मी टू फोन हर, शी विल टॉक फॉर आवर्स. ठीक है. नाउ आपका आता है पंक्चुएशन कॉमा. कॉमा मार्क को हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हम कॉमा मार्क को हिंदी में? अल्प विराम. क्या कहते हैं? अल्प विराम. ठीक है. We use comma to separate a list of similar words or phrases. It's important to write in clear, simple, accurate words. हम comma को use करते हैं words को separate करने के लिए. ठीक है. जैसे अगर बहुत सारे words हैं तो उन words को separate करने के लिए, जैसे कि it's important to write in clear, simple, accurate words means clear भी लिखो, simple भी लिखो और accurate words भी लिखो. तो इन तीनों को separate करने के लिए हम बीच में लगाते हैं कौन सा मार्क? पंक्चुएशन comma. Then they were more friendly, more talkative, more open than last time we met them. तो वो जो थे बहुत फ्रेंडली थे, टॉकटिव थे, मोर ओपन थे लास्ट टाइम से. तो ये सब सेपरेट करने के लिए हम बीच में लगाएंगे कॉमा. ठीक है. वी डू नॉट नॉर्मली यूज अ कॉमा बिफोर एट द एंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड. हम कभी भी कॉमा को नॉर्मली हम एक सिंगल लिस्ट वर्ड के एंड होने पे नहीं लगाते हैं. ठीक है. दे ट्रेवल थ्रू बल्गेरिया, स्लोवेकिया, द चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड. तो ये बहुत सारी कंट्रीज का नाम है, तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए बीच में लगाया है कॉमा. ओके. अब आपका आता है कोलन एंड सेमीकोलन. वी यूज कोलन टू इंट्रोड्यूस लिस्ट. किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं. दे आर थ्री मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की सक्सेस के 3 रीजन होते हैं. इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिक. ठीक है. अब 3 की स्टार्टिंग में हमने क्या लगाया है? कोलन मार्क. क्या लगाया है? कोलन मार्क. सी दिस इज अ कोलन मार्क. हमने इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. ठीक है. We also use colon to indicate a subtitle or to indicate a subdivision of a topic. किस चीज को सबटाइटल के हम यूज भी कर सकते हैं. लाइव इन प्रोविंस, अ पर्सनल व्यू. तो बीच में हमने क्या लगाया? कोलन. We often use colon to introduce direct speech. Even direct speech यूज करने के लिए भी हम कोलन का यूज करते हैं. Then he said, I really cannot help you in any way. मतलब कि फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद किसी भी तरह नहीं कर सकता हूँ. तो जो उसने कहा है उसको हमने किस चीज में रखा है? उसको कोलन्स में. किस चीज में रखा है हमने उसको? कोलन्स में. ठीक है. Now, semicolon. The most common use of the semicolon is to join two independent clauses without using a conjunction like and. मतलब सेमीकोलन का काम होता है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाना बिना कंजक्शन के. कंजक्शन मीन्स एंड, बट, दीज ऑल आर कंजक्शंस. ठीक है. डू यू यूज द कैपिटल लेटर आफ्टर सेमीकोलन? क्या आप सेमीकोलन के बाद कैपिटल लेटर यूज करते हैं? द आंसर इज नो. अ सेमीकोलन शुड बी फॉलोड बाय अ कैपिटल लेटर ओनली इफ द वर्ड इज अ प्रॉपर नाउन और एन एक्रोनियम. सेमीकोलन जब ही आप कैपिटल लेटर में होगा जब आप या तो प्रॉपर नाउन फॉलो कर रहे हो या फिर एक्रोनियम फॉलो कर रहे हो. ठीक है. सेमीकोलन को हिंदी में हम कहते हैं अर्धविराम. ओके. सेमीकोलन्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन कंटेम्पररी इंग्लिश. Full stops and commas are more common. Now see, these are the examples of semicolons. Call me tomorrow. You can give me an answer then. देखो, call me tomorrow. This we can put here semicolon and you can give me an answer then. We have paid our dues. Then semicolon. We expect all the privileges listed in the contract. Okay. Like punctuation, quotation mark. Now what is quotation mark?
हमारा नेक्स्ट आता है कोटेशन मार्क को हम हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इन डायरेक्ट स्पीच मीनिंग गोज व्हाट इज सेड विद अ पेयर ऑफ सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। जब हम कोई डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं तो उसमें या तो सिंगल या फिर डबल कोटेशन मार्क लगता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। जब कोई डायरेक्ट स्पीच बिगन होती है तो वो कैपिटल लेटर से हमारी स्टार्टिंग होती है। जैसे अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर हम डायरेक्ट स्पीच को लगाते हैं पहले प्रोसीड बाय कॉमा और अ कोलन। पहले कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम कोलन लगाते हैं, ठीक है। लाइक शी सेड वेयर वी कैन फाइंड अ नाइस रेस्टोरेंट। अब आप देख सकते हैं शी सेड, ठीक है, कि उसने जो कहा उसके बाद आया हमारा कॉमा, देन हमारा जो सेंटेंस बिगन हुआ इन कोटेशन मार्क्स। Where can we find a nice Indian restaurant? और she said where can we find a nice Indian restaurant? अब उसने क्वेश्चन पूछा है, दूसरे सेंटेंस में हमने सेम हमने वही करा है। पहले उसने पूछा है, डायरेक्ट स्पीच करी है, उसके बाद हमने ऊपर वाले में लगाया है डबल कोलन, देन नीचे वाले में लगाया है हमने सिंगल कोलन, ठीक है। वी कैन पुट द रिपोर्टिंग क्लॉज इन 3 डिफरेंट पोजिशन। हम इसको अपने क्लॉज को 3 डिफरेंट पोजिशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। नोट द पोजिशन ऑफ कॉमर्स एंड फुल स्टॉप है। बस आपको क्या देखना होता है, कॉमर्स की पोजिशन और फुल स्टॉप, ओके। द फिटनेस ट्रेनर सेड डोंट ट्राई टू डू टू मच व्हेन यू बिगिन। सी, फिटनेस ट्रेनर ने कहा है कि डोंट ट्राई टू डू टू मच व्हेन यू बिगिन। जब आप शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा ट्राई आप मत कीजिएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कोटेशन मार्क में। हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, देन एंड भी हमारा कोटेशन मार्क के साथ हुआ है। कोटेशन मार्क आफ्टर कॉमा इंट्रोड्यूसिंग स्पीच एंड आफ्टर फुल स्टॉप, ओके। कोटेशन मार्क आफ्टर कॉमा, कॉमा के बाद हमारी स्पीच इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद। Don't try to do too much weight when you begin, the fitness trainer said, comma before closing quotation mark। comma आता है आपका quotation mark क्लोज करने से पहले, ठीक है। quotation mark क्लोज करने से पहले आपको comma आता है, देख सकते हैं आप ऊपर। Don't try to do too much, the fitness trainer said when you begin, ठीक है। कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टेड क्लॉज। अब 3 चीज़ आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि आपको 3 पोजीशन याद रखनी है। कोटेशन मार्क आफ्टर कॉमा इंट्रोड्यूस स्पीच एंड आफ्टर फुल स्टॉप, कॉमा बिफोर क्लोजिंग कोटेशन मार्क एंड कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग क्लॉज, ओके। सेपरेट कर रहा है क्लॉज को, जैसे डोंट ट्राई टू डू टू मच, द फिटनेस ट्रेनर सेड व्हेन यू बिगिन, ओके। नाउ दिस ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Please like, subscribe, comment and hit the bell icon button to get more video updates. Thank you.